In this chapter, we will read about factorization of a polynomial. ठीक है. Now, first is what is a polynomial? Polynomial मतलब एक x में एक एक्सप्रेशन होगा. ठीक है. Polynomial means x में एक एक्सप्रेशन होगा जिसमें necessarily जितने सारे x हैं उनका जो पावर है, पावर is necessarily integer. See, if you see here, x to the power n, x to the power n minus 1, x to the power n minus 2, ऐसे होते होते x to the power 1 and finally nothing is there, means x to the power 0. In all those things, यहाँ पे जो n है, n अपना एक इंटीजर होगा. कौन सा इंटीजर? ये हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए. ठीक है. n का वैल्यू कुछ ऐसा हो ताकि ये हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा. If the power of x is a positive integer, then only we will consider the whole polynomial, the whole equation as a polynomial, the whole expression as a polynomial. Okay. So whenever an expression is given, the power of x it should always be a positive integer. For example, जैसे कि मैं ऐसा लिखूंगा 3x square minus 5x plus 8. Now this is a polynomial. Okay. क्योंकि यहाँ पे देखो x का जितने भी पावर्स हैं सब पॉजिटिव इंटीजर है. यहाँ पे 1 है पावर, यहाँ पे पावर 2 है. और एक एग्जांपल जैसे कि x क्यूब प्लस 4x माइनस 8, ये वाला भी अगर देखोगे देन दिस इज ऑल्सो ए पॉलिनोमियल. वाई पॉलिनोमियल? बिकॉज द पावर ऑफ द वेरिएबल x इज ए पॉजिटिव इंटीजर. बट इफ आई राइट समथिंग लाइक दिस x स्क्वायर प्लस 4 रूट x प्लस 7, देन दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल. वाई? बिकॉज यहाँ पे x का पावर 1/2 है. रूट x का मतलब होता है पावर 1/2, तो ये नहीं होगा. दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल. फ्रैक्शनल पावर्स नॉट अलाउड, नेगेटिव पावर्स आल्सो नॉट अलाउड. मतलब ऐसा भी नहीं लिख सकते कि x क्यूब होगा, x स्क्वायर होगा, सपोज -5 x टू द पावर -1 हो गया. अरे x टू द पावर -1 मींस 5/x हो जाएगा ये. तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा. मतलब नेगेटिव इंटीजर्स आर आल्सो नॉट अलाउड, ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स. अंडरस्टैंडिंग? तो वेरिएबल्स में ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स if it is there, then we say it is a polynomial. Now any polynomial is expressed या symbolized by using the symbols fx या फिर gx या फिर hx, इस तरह दिया जाता है. Any polynomial can be assigned to a variable जिसको हम लोग बोलते हैं fx, मतलब function of x बोला जाता है. इसको हायर में अच्छे से है. Now you can simply think this is fx, gx, hx, any variable. Okay, इस तरह का variable होगा. अच्छा. Now in this polynomial, if you see that this is the general equation of the polynomial, here a0, a1, a2, dot dot dot, an minus 1, an, these all are known as the coefficient of the polynomial. मतलब वेरिएबल के साइड में जो नंबर्स होंगे उनको हम बोलेंगे कोफिशिएंट्स. वेरिएबल के साइड में जो नंबर्स होंगे उनको हम बोलेंगे कोफिशिएंट्स. ठीक है. तो a0, a1, a2, these are all coefficient of the polynomial. Now in a polynomial, the variable, the highest degree, the highest power of the variable is known as the degree of the polynomial. Okay. If a polynomial is given, उस polynomial का जो भी highest power होगा उसको हम बोलते हैं डिग्री. जैसे कि यहाँ पे अगर देखोगे n, n-1, n-2, the degree of the polynomial is n itself. Because n is the highest power. बड़ा कौन होगा? n बड़ा कि n-1, n-2 बड़ा? Obviously n बड़ा. The degree of the polynomial here is n. Means if I write something like this, 3x square plus 5x minus 7. Here the degree of the polynomial is 2. Means this is a degree 2 polynomial. जिसको हम quadratic polynomial भी बोलते हैं. Quadratic polynomial. If I write x square की जगह लिख दूंगा अभी x cube, then this is a degree 3 polynomial or it is known as cubic polynomial. ठीक है. इस तरह मतलब एक पॉलिनोमियल होगा, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होता है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. नाउ whenever a polynomial is given to you and if you express or assign that polynomial to the value 0, that polynomial to the value 0, then we say it is polynomial equation. Only if the polynomial is given we say it is polynomial expression. और एक्सप्रेशन को अगर 0 को असाइन कर लें तो इसको हम बोलेंगे polynomial equation. ठीक है. दिस इज एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म. अब दिस होल थिंग इफ आई राइट दिस इज इक्वल टू 0, देन वी विल से दिस इज पॉलिनोमियल इक्वेशन. ओके. ठीक है. अब फिर आता है डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ द पॉलिनोमियल. तो यहाँ से मेन चैप्टर शुरू हो रहा है, डिवीजन एल्गोरिथम. तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? सी
डिवीजन मीन्स ऑब्वियसली डिवाइडिंग समथिंग, वन पॉलिनोमियल विल बी गिवन टू यू, एक्सप्रेशन x में होगा, दैट विल बी डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बचपन में किया है, जैसे कि x क्यूब, ये छोटा वाला ले रहा हूं मैं, जैसे कि x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 8, इफ आई डिवाइड दिस बाय x माइनस 1, सपोज आई डिवाइड दिस बाय x माइनस 1 इजी करते हैं, चलो x प्लस 1 से डिवाइड करें, 10 x plus 1 से डिवाइड करेंगे। Now obviously this part is known as the dividend and this part is known as the divisor. Now if I divide this, x है या यहाँ पर लिख दो मैं 2x square, ठीक है, अच्छा से करेंगे। तो if it is here, if I have 2x square here, if I have x here, our target is to eliminate this 2x square, तो मैं क्या करूँगा, x में 2x if I multiply 2x into x 2x square होता है, 2x into 1 2x होता है, इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 3x और माइनस 8 नीचे आ जाएगा 3x minus 8. Now again you have to eliminate this one. So here you have x, here you have 3x. What I'll do? I'll multiply plus 3 here. If I multiply plus 3, this will be 3x plus 3. Minus करेंगे तो minus 8 minus 3 will be minus 11. Now this part is known as dividend. Dividend. This is known as divisor. This is known as quotient. And this is known as remainder, ठीक है, ये तो सबको पता होगा। Now we know dividend is equal to divisor into quotient plus remainder, बचपन से dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. Now if dividend is taken by the function fx, देख लो dividend को हमने क्या लिया, एक फंक्शन है ना, fx एक पॉलिनोमियल है। If dividend is taken as function fx and that is divided by another polynomial gx, जैसे कि ये वाला हो गया अपना fx, मतलब लिखूंगा अगर fx is equals to 2x square plus 5x minus 8, ये हो गया अपना dividend that is represented by fx which is divided by x plus 1, मतलब ये हो गया divisor, और divisor को हमने represent किया polynomial gx से, gx यहाँ पे है x plus 1. Then there exist unique polynomial qx and rx. qx रिप्रेजेंट करता है क्वोशिएंट वाला पॉलिनोमियल, rx रिप्रेजेंट करता है रिमाइंडर वाला पॉलिनोमियल. There exist unique polynomial qx and rx such that fx equal to this relation, fx is equal to gx into qx plus rx. Obviously होगा, fx अपना है डिविडेंड, gx है डिवाइजर, qx है क्वोशिएंट और rx है रिमाइंडर. Now डिविडेंड is equal to डिवाइजर into क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, जो नंबर्स में होता था अभी पॉलिनोमियल्स में हो. सेम थिंग फॉर नंबर्स, सेम थिंग फॉर पॉलिनोमियल्स. ओके, now one more thing. See here qx rx gx fx everything is a polynomial. तुम बोलोगे कि ये नंबर आ रहा है रिमाइंडर, अच्छा नंबर्स आर आल्सो पॉलिनोमियल, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल. यहाँ पे x का पावर 0 होता है, -11 मींस आई कैन राइट दिस इज -11 x to the power 0, ये सब. तो ये वाला होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल. जहाँ पे x होता ही नहीं है, ओनली नंबर्स आर देयर, ओनली नंबर, देन दैट इज नोन एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल. जहाँ पे पॉलिनोमियल का डिग्री 1 है, हाईएस्ट पावर 1 है, इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल. और जब डिग्री 2 है तो बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. जब डिग्री 3 होगा देन वी से इट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल. ओके, इट मींस कांस्टेंट नंबर इज आल्सो अ पॉलिनोमियल, जिसको टू whom we say it is constant polynomial. Okay, constant numbers are also polynomial known as constant polynomial. अच्छा, एक चीज और सुनो. जो रिमाइंडर आएगा उसका डिग्री हमेशा डिवाइजर का डिग्री से कम रहना चाहिए. द डिग्री ऑफ द रिमाइंडर शुड ऑलवेज बी लेस देन डिग्री ऑफ द डिवाइजर. ऑलवेज डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिग्री ऑफ द डिवाइजर. दिस यू रिमेंबर. लेस मतलब कभी कभी डिग्री 0 भी हो सकता है, या फिर डिग्री 1, मतलब ये अगर 1 है तो नेसेसरीली इसका डिग्री 0 होना चाहिए, इसलिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल है. देख लो ना, डिविजर का पॉलिनोमियल डिग्री क्या है 1, एंड नियम बोलता है कि डिग्री ऑफ द रिमाइंडर मस्ट बी लेस देन डिग्री ऑफ द डिवाइजर. If degree of the divisor is 1, then degree of the remainder will be less than 1. It means the degree of the remainder will be 0. Okay. And sometimes remainder may be 0. Remainder कब 0 होगा? Remainder तब 0 होगा when divisor is a factor of the dividend. Yes or no? When we divide a polynomial with other polynomial such that divisor is a factor, then we get remainder 0. जैसे नंबर में सोच लो, 24 को अगर 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आंसर आएगा 4. 24 रिमाइंडर आता है 0.
because remainder is 0, therefore 6 is a factor of 24. Similarly, if Rx is equal to 0, then what will be there? X plus 1 या फिर जो अपना gx है divisor, that is a factor of the polynomial fx. Means when remainder is 0, whatever divisor you are taking, that is the factor of the polynomial fx. Okay. Example मिटा रहे, मैं लिख भी दे रहा हूँ इसको. When Rx is equals to 0, then your divisor gx is a factor of the dividend fx. क्लियर हो गया? अच्छा, जब ऐसा नहीं होगा, Rx नॉन जीरो होगा, Rx नॉट इक्वल्स टू 0, Rx नॉट इक्वल्स टू 0, देन ये डिग्री ऑफ Rx जो भी है वो हमेशा लेस देन डिग्री ऑफ gx होगा, हमेशा. मतलब रिमाइंडर का डिग्री तुम्हारा डिवाइजर का डिग्री से कम होता है. और डिग्री याद है ना, डिग्री क्या होता है? पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर. ओके, मतलब अगर डिवाइजर का डिग्री है 2 तो रिमाइंडर का डिग्री होना चाहिए 1. डिवाइजर का डिग्री है 1 तो रिमाइंडर का डिग्री होना चाहिए 1 से कम, मतलब 0. तो इससे दो नोट पॉइंट बनेगा. इफ gx इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, जैसे कि अपना एग्जांपल में अभी दिखे थे, अपना जो gx था डिवाइजर वो क्या था? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, शायद x plus 1 लिया था मैं. तो वहां पे तुमने देखा कि रिमाइंडर क्या आया था? -11 आया था, क्या कांस्टेंट आया था. मींस इफ gx इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, देन rx इज इक्वल्स टू c. व्हाट इज c? c इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल. ये एक सिंपल नंबर आएगा, तुमको मिलेगा, एक सिंपल नंबर मिलेगा. नाउ इफ gx is polynomial of degree 2, gx is a polynomial of degree 2, मतलब जो डिवाइजर होगा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा. डिग्री 2 मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. देन rx जो है उसका डिग्री क्या होगा? कम होना चाहिए. डिग्री ऑफ rx शुड बी लेस देन डिग्री ऑफ gx. मींस अब gx का डिग्री अगर 2 है तो rx का डिग्री क्या होगा? इधर इट विल बी 1 और उससे भी कम भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है. तो इन जनरल हम क्या लिखेंगे? डिग्री 1 वाला पॉलिनोमियल लिखेंगे. मींस rx इज इक्वल टू, इन जनरल इट विल बी ax प्लस b. देखो gx डिवाइजर डिग्री 2, तो rx रिमाइंडर उसका डिग्री कम होना चाहिए. मतलब इसका डिग्री अगर 2 है, ये वाला डिग्री बताओ कितना है? ये वाला डिग्री है 1, क्योंकि x का पावर कितना है? 1. तो दिस इज डिग्री 1, where a and b may or may not be 0. मतलब अगर a 0 हो गया तो rx इज इक्वल टू b आएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल आ जाएगा. मतलब डिग्री इज 0 चलेगा, डिग्री 0 इज लेस देन डिग्री 2. अगर a 0 नहीं हुआ सपोज तो x रहेगा, चलेगा. डिग्री 1 है, 1 इज लेस देन 2. मतलब कम होना है, 2 से कम होना है. 1 भी चलता है, 0 भी चलता है. क्या आएगा? 1 आएगा कि 0 आएगा? दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन इटसेल्फ. ठीक है, तो ये अपना हो जाता है डिवीजन एल्गोरिथम. कैसे डिवीजन करना है एक बार तो दिखा दिया, कैसे डिवीजन करना है. उसके बाद विल सी वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट सम पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x. पॉलिनोमियल का वैल्यू एक पर्टिकुलर जगह पे कैसे निकालते हैं. अच्छा देखिए, एग्जांपल से बताऊंगा. सी सपोज वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बहुत इजी है. वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कुछ नहीं है. सपोज एग्जांपल fx इज इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5. ये अपना पॉलिनोमियल है. बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल fx एट x इज इक्वल्स टू 1. x इक्वल टू 1 में पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालो. तो बहुत इजी, क्या करना है? बस x की जगह 1 डाल देना. मतलब इसको लिखेंगे कैसे? x की जगह 1 तो लिखूंगा f ऑफ 1, और यहाँ पे जहाँ पे दिख रहा है सब में 1 डालना. 2 इंटू 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस 5. सो दिस विल बी 2 माइनस 3 प्लस 4 प्लस 5. 5 प्लस 4 9, 2 माइनस 3 माइनस 1, 9 माइनस 1 इज 8. मीन्स द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल्स टू 1 इज प्लस 8. ठीक है, अगर कोई बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल्स टू सपोज -2 बोला, तो तुम क्या करोगे? f -2 निकालना. ठीक है,
-2 मतलब यहाँ पे हो जाएगा -2, यहाँ पे हो जाएगा -2, ये भी हो जाएगा -2, वैल्यूज थोड़ा चेंज हो जाएंगे। -2 का क्यूब हो जाएगा -8 इंटू 2 इज -16, फिर यहाँ पे -2 का स्क्वायर +4, 4 3 12, एंड दिस इज -8 और ये हो जाएगा +5। सॉल्व कर लेना, जो आएगा आएगा। दिस इज हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। ओके, देन कम्स root of a polynomial. Then comes root of a polynomial. अच्छा, root of the polynomial मतलब होता है value of x, मतलब x का क्या वैल्यू लेने से fx का वैल्यू 0 हो जाए। ठीक है, value of x for which fx is equals to 0. For example, if I have a polynomial x square minus 5x plus 6, root of the polynomial मतलब x का कौन सा वैल्यू so that fx का वैल्यू 0 हो जाए। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूंगा at x is equals to 2, देखते हैं क्या आ रहा है। f of 2 लिखूंगा, f of 2 का वैल्यू क्या है, मतलब 2 square minus 5 into 2 plus 6। Now if you see this 2 square is 4 plus 6 is 10, this is minus 10, 0. Means what? X is equals to 2 is a root. Yes or no? Similarly अगर देखोगे at x is equals to 3, f of 3 भी if you see, then also it will come out to be 0. Means what? X is equals to 2 and x is equals to 3. Both are roots of the polynomial. Okay? Now x equal to 2 लिया, ठीक है? अब 2 अगर इधर आएगा तो बनेगा x minus 2. Similarly, x is equals to 3 was a root. अगर 3 को इस साइड लोगे तो बनेगा x minus 3. Now this polynomial x minus 2, this polynomial x minus 3, these are known as factors of the polynomial. क्या बोलते हैं? Factors of the polynomial. मतलब जो नंबर पॉलिनोमियल में डालोगे so that ये पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाए, वो नंबर को बोलते हैं रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। और वो होता है x का वैल्यू, नंबर को x के साथ जोड़ देना, जो भी आएगा x इक्वल टू 2 था, x माइनस 2 हो गया, x इक्वल टू 3 था, x माइनस 3 हो गया। ये जो लीनियर पॉलिनोमियल्स बना, इनको बोलेंगे फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल। फैक्टर्स तो पता ही होगा, जो पॉलिनोमियल को अच्छे से डिवाइड कर ले सो दैट रिमाइंडर 0 आ जाए। मतलब अगर x माइनस 2 को इससे डिवाइड करोगे देन यू विल सी रिमाइंडर विल कम आउट टू बी 0। अगर x माइनस 3 को इससे डिवाइड करोगे देन आल्सो यू विल सी इट विल कम आउट टू बी 0। व्हिच थिंग रिमाइंडर विल कम आउट टू बी 0। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल एक दिखा सकता हूं, जैसे कि fx is equals to क्यूबिक पॉलिनोमियल ले रहे हैं, तो 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। ये एक पॉलिनोमियल है, बोला है कि इसका रूट निकालो। रूट निकालने का तरीका क्यूबिक में आपका ये होता है नॉर्मल हिट एंड ट्रायल, मीन्स थिंक द वैल्यू ऑफ x, इसमें डालो, देखो 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इट्स कंप्लीट हिट एंड ट्रायल। फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यू कैन मिडिल टर्म फैक्टराइज इट। ओके, ट्राइनोमियल फैक्टरेशन करो, उससे रूट मिल जाता है क्वाड्रेटिक में। क्यूबिक में ऐसा कुछ नियम नहीं है, यू हैव टू जस्ट डू हिट एंड ट्रायल मेथड। लेट x इज इक्वल्स टू 1 ले लेंगे पहले, लेट x इक्वल टू 1 लो, f ऑफ 1 क्या आ जाएगा, 2 into 1 क्यूब माइनस 7 into 1 स्क्वायर minus 5 into 1 plus 4, which will be 2 minus 7 minus 5 plus 4. ठीक है, तो how much it will be? कुछ आएगा और क्या, 2 minus 7, 2 minus 7, 2 minus 7, something, but it will not be 0. 2 minus 7 is how much? कहते हैं minus 5, बदल देंगे। 2 minus 7 is minus 5, minus 5 minus 5 minus 10, minus 10 plus 4 is minus 6. Means क्या, x equal to 1 is not a factor, क्योंकि वैल्यू 0 नहीं आया। अब क्या करेंगे, दूसरा कुछ assumption लेंगे, जैसे कि x is equals to minus 1. If I take x is equals to minus 1, चेक करना पड़ेगा, 2 into minus 1 cube minus 7 into minus 1 square minus 5 into minus 1 plus 4. Now this will be minus 2 minus 7 plus 5 plus 4. Means हाँ ये 0 आ रहा है, मतलब x is equals to minus 1 is a root, क्योंकि वैल्यू 0 आया। अगर वैल्यू 0 आ रहा है देन ये रूट होगा। अच्छा, अगर x इक्वल टू माइनस 1, मतलब माइनस 1 अगर एक रूट है तो माइनस 1 इस साइड आएगा तो क्या होगा, x प्लस 1। तो हम बोलेंगे कि x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल fx। आया समझ में?
तो क्यूबिक में हिट एंड ट्रायल करके देखना है कि कहां पे जीरो आ रहा है, वही होगा उसका रूट। ओके, और क्वाड्रेटिक में हिट एंड ट्रायल कर सकते हो, नहीं तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करो, तुमको दोनों रूट मिल जाएंगे।